We have an external resistance. And its internal resistance. External resistance is simply in ohms. This is also in ohms, students we consider. External resistance, students, is actually the resistance offered to the flow of electrons. Flow of electrons by the atoms of the conductors called external resistance, students. Okay, and it's in the copper wire. And internal resistance, I said very clearly, it's within the cell, students. So when you're showing internal resistance, students, it is always drawn very close to the negative terminal. This is positive, negative, and this is E. Since internal resistance is always shown very close to the negative terminal, ये तुम्हारा external resistance. This is called as fixed resistance, not external resistance. And that is simply considered to be ohm, students. Now, when I ask you, students, in both the cases, charges are moving, students. So if you recollect, when I explained to you about the concept of electric cell, a concept of simple voltage cell, students. So I made it very clear that under internally and externally, can I say the charge remains constant? Students, as many electrons discharged, that many electrons taken. Sulfate ions अपने 2 electrons discharge कर रहा है, copper अपने 2 electrons दे रहा है, तो एक flow of charge हमेशा constant रहता है. Is that part clear to all of you all? Yes. तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलूं करंट एक्सटर्नली और करंट इंटरनली, तो मैं दोनों केस में कांस्टेंट रखूंगा. एग्रीड. दूसरी बात, अगर मुझे चार्ज इंटरनली मूव करना है, चार्ज का मतलब मुझे आयंस को मूव करना है, तो अगर आयंस को मूव करना है तो मोशन ऑफ चार्ज होगा, मोशन ऑफ चार्ज होगा तो मोशन ऑफ करंट होगा, और ये करंट को क्रिएट करने के लिए मुझे पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होगी. ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं ड्रॉप वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस. This is called as drop voltage, and that is small r into I. It is actually the potential difference for internal resistance. ये ध्यान में रखना. It's for the internal resistance we consider. तो अगर सपोज एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए आयंस को मूव करने के लिए, कहाँ पे? सेल के अंदर. तो वैसे ही तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, कहाँ पे? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में. तो उसके लिए भी तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो वो कैपिटल डी होगा स्टूडेंट्स, कैपिटल आर इंटू आर. ये जो कैपिटल भी है, इसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज. These students do understand the names. टर्मिनल वोल्टेज का मतलब क्या होगा? It's a potential difference to overcome external resistance. Potential difference to overcome internal resistance. This is a potential difference for the electrons to move inside the copper wire. This is the potential difference for the ions to move inside this. ये है external resistance, ये internal resistance. Current externally and current internally दोनों केस में constant ही रहेगा. क्या ये clear हुआ students? Yes. Now, when I speak further ahead, if in case if I ask you students, what are the factors on which external resistance of a cell depends? Sorry, factors on which external resistance of a conductor depends. So can you tell me factors? शायद तुम पढ़ चुके हो पहले. Sir, can you repeat the question? Factors on which external resistance depends. Students. The temperature of wire. Or other factors? Material. Or
कोई फैक्टर्स इसके अलावा? उसी का एक तुम्हारा फैक्टर है डिफरेंस, मटेरियल, एरिया, लेंथ, टेम्परेचर. So call as MARD. You can remember this man. It depends on the material. Copper wire undergoes less resistance as compared to that of other. अगर मैं सिल्वर लेता हूँ तो सिल्वर और रेजिस्टेंस कम देता है. So different materials will give me different resistance students in that case. It depends on the area. So looking into this students, we can get the formula R is equal to rho L by A. ये तुम्हारा formula तुम लोगों ने पढ़ चुके हो earlier भी, शायद 10th पे पढ़ा होगा. So resistance proportional to length है, inverse proportional to area of cross section and direct proportional to length and area. तो ये जो rho है वो क्या है? वो है resistivity. Okay. So ये है factors on which external resistance depends. Students, material, area, length and temperature. Now see what are the factors on which internal resistance depends. Since internal resistance can be factors, it depends on the nature and concentration of electrolyte. It depends on the nature and concentration of the electrolyte. Then what exactly depends on the material of the electrodes? Rather than going for materials, means it depends on the distance between the electrolytes. Distance between the electrodes. इसका हेडिंग क्या है? Huh? सर हेडिंग. Heading, my dear, it's resistance. It's a concept of resistance only. Heading. We're speaking about resistance only, my dear. Okay. Yes. Which center path you were into? What, sir? Which path? Which center you had? अच्छा तुम्हारे लेक्चर शुरू हो गया क्या? तुम्हारे ऑफलाइन लेक्चर शुरू हुए? पार्थ इज फ्रॉम मीरा रोड, है ना? ओके फाइन. इवन अंधेरी के अंदर शुरू हो गया था. आई पिक्ड अप एट कांदीवली टीपी भाटिया. फाइन. Okay, fine. So what time sir's lectures got over, Parth? Oh my God, 3:30 and 4 o'clock, my lectures. Fine, doesn't matter. Okay, students, ये जो concept मैं बता रहा हूँ ना, it's based on to resistance का ही concept है. You getting it? We're speaking about resistance के बारे में ही हम बात कर रहे हैं. Okay, last time जहाँ से हम रुके थे वही पकड़ रहे हैं. Nature and concentration of the electrolyte, distance between the two electrodes, it depends on the surface area of the electrodes also. जितना ज़्यादा surface area उतना resistance कम होगा, students. So it depends on the surface area of the electrodes also. Surface area of electrodes. So ये factors है on which internal resistance depends. Temperature of the electrolyte भी है. यहाँ पे material, area, length and temperature of conductor, यहाँ पे temperature of electrolyte भी है. यानी ये तुम्हारा external हुआ, ये तुम्हारा internal के लिए हुआ, students. दोनों केस के लिए. क्या इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Is this clear? Yes, sir, clear. Now suppose अगर मैं पूछूं EMF का मतलब क्या है? What exactly EMF? EMF we consider what is the electromotive force of a cell. Unit क्या है इसका? Volt. ये electromotive force है क्या? Electromotive force is defined as work done to move a charge from one point to another. Electromotive force is the work done to move a charge once around the complete circuit. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ई में कंफ्यूजन होगा थोड़ा, अलग सिंबल नहीं है इसका. हाँ, that is what we consider. इसको हम छोटा a ले लेते हैं, ऐसे ही. ओके, सिंबल में हम ऐसे लिखते हैं EMF. ओके, तो जब भी मैं अभी ऐसे लिखूंगा ना, ये EMF. ओके, you can consider in that case. ओके, छोटा e. बस रोमन e बस खुश.
हाँ सही बोला, सर, सही बोला, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, ये देखो ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स है, लेकिन अभी करें क्या, यू हैव टू गो विद दैट इज ओनली। ये देखो तुम्हारा ईएमएफ इज गोइंग टू वर्क डन टू मूव अ चार्ज वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट। कंप्लीट सर्किट का मतलब क्या, कंप्लीट सर्किट का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हम भेजते हैं एक्सटर्नली एंड आयंस को हम भेजते हैं इंटरनली। तो ये जो मोशन है इसको बोलते हैं कंप्लीट सर्किट। अभी देखो बाहर भी चार्ज भेजना है, अंदर भी चार्ज भेजना है, तो उसके लिए भी तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा ईएमएफ है स्टूडेंट्स। यानी एक ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन है, ओके, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन है उसका मतलब इफ current is not flowing, then potential difference between terminals of electric cell is called electromotive force of a cell। क्या ये क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो अगर मैंने बोला कि अगर सर्किट ओपन है और करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज सिंपली कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, दैट इज ईएमएफ ऑफ द सेल। यानी ये ईएमएफ है क्या, ये है ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर कंप्लीट सर्किट। ये ध्यान रखना। अभी सपोज मैंने एक सेल लिया स्टूडेंट्स, इफ आई हैव टू गिव अ सेल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और उस सेल पे लिखा है 1.5 वोल्ट, तो स्टूडेंट्स क्या ये ईएमएफ है, सॉरी क्या ये ईएमएफ है, क्या ये टर्मिनल वोल्टेज है, या ये ड्रॉप वोल्टेज है? क्या बोलोगे? इफ आई गिव यू अ सेल एंड इट्स रिटन 1.5 वोल्ट, मैंने कोई सर्किट कनेक्ट ही नहीं किया है, आई एम नॉट लेटिंग एनी करंट टू फ्लो थ्रू इट, तो ये ओपन सर्किट हुआ। तो ये जो 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, इज इट ईएमएफ, इज इट टर्मिनल वोल्टेज, और इज इट ड्रॉप वोल्टेज? सर क्या ईएमएफ। बोलोगे? ईएमएफ है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द कंप्लीट सर्किट, तो ये 1.5 वोल्ट है। नाउ सपोज अगर मैंने कोई बल्ब कनेक्ट कर दिया स्टूडेंट्स, आई गेटिंग इट, और उसके अक्रॉस मैंने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, से ये मेरा आ गया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब मुझे बताओ ये वोल्ट मीटर तुम्हें क्या बताएगा, विल इट गिव यू वैल्यू मोर देन 1.5 और इक्वल टू 1.5? अभी मैंने बल्ब कनेक्ट किया है और उसके अक्रॉस मैंने एक वोल्ट मीटर बताया, मुझे बताओ स्टूडेंट्स ये वोल्ट मीटर मुझे क्या रीडिंग देगा, विल इट शो मी अ रीडिंग इक्वल टू 1.5 और मोर देन 1.5? सर ज्यादा दिखाएगा। ज्यादा दिखाएगा। व्हाट अबाउट यू नॉर्मन बी? sir, it will show higher value. higher value, it will show me a value less than that, 1.2 वोल्ट। कहाँ से हायर होगा, जब भी सप्लाई 1.5, तो हायर कहाँ से दिखाएगा, क्या एक्स्ट्रा वोल्टेज तो क्या आपने दो ऑप्शन दिए ना। अरे तो दो ऑप्शन वो, अरे सोचना चाहिए ना यार, कहाँ से हायर हो ही नहीं सकता। हाउ कैन ऑटोमेटिकली द वोल्टेज विल इंक्रीज अक्रॉस दैट? Yes. देखो एक ध्यान से सुनो, 1.5 वोल्ट यानी स्टूडेंट्स ये सब कुछ, ये जो कंसेप्ट है ना, यही तुम्हें प्रॉब्लम्स को क्रैक कराने में सही तरीके से समझ में आएगा। ये जो ईएमएफ है क्या, ईएमएफ इज अ वोल्टेज फॉर द कंप्लीट सर्किट, यानी अगर तुमने सर्किट को शुरू नहीं किया है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंटायर सर्किट इज 1.5, लेकिन जैसे तुमने बल्ब कनेक्ट किया और तुमने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, तो इट विल शो मी ओनली द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, उनको वोल्टेज चाहिए, तो वोल्टेज का रेजिस्टेंस की वजह से कम होगा ना वोल्टेज। क्या बोल रहे हैं, हाँ, तो इनका जो डिफरेंस होगा, जो मुझे अभी शायद 0.3 वोल्ट मिल रहा है, वो क्या है, वो ड्रॉप वोल्टेज है। ये 0.3 वोल्ट किसको चाहिए, ये आयंस को चाहिए, यहाँ पे ये आयंस के लिए है, टू मूव टू द रिस्पेक्टिव लेवल, क्योंकि चार्ज इंटरनली मूव हो रहा है, चार्ज एक्सटर्नली मूव हो रहा है, दोनों के लिए हमारे पास में ईएमएफ है। दैट इज व्हाई वी सिंपली राइट डाउन E is equal to capital V plus small v। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ सर। So electromotive force, ध्यान से सुना, electromotive force is a work done to move a charge once around the complete circuit,
Terminal voltage is it's a work done to move a charge externally or potential difference for the external resistance. Drop voltage is a work done to move a charge internally inside the cell, or it is a drop voltage we consider. So E is equal to capital V plus small v. ये ध्यान में रखना, कोई भी सेल तुम लेते हो, any electric cell or any battery when you take it, students, always it will have internal resistance. Internal resistance कभी zero नहीं होता. Any source of electricity however has internal resistance. Internal resistance कभी zero नहीं होगा. लेकिन जब भी तुम कोई MCQ करते हो या कोई प्रॉब्लम लिखते हो तो वहां पे अगर नहीं बताया है उसका मतलब अज्यूम किया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है. थियोरेटिकली पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. या वो बताते हैं अ सेल ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, स्टेटमेंट वहां से शुरू होता है. एन इलेक्ट्रिक सेल ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, उसका मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट जीरो. होना नहीं चाहिए लेकिन थियोरेटिकली पॉसिबल. जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो आ जाता है स्टूडेंट्स, तो तुम्हारा प्रॉब्लम का लेंथ कम हो जाता है, ज्यादा कैलकुलेशंस कम हो जाते हैं. लेकिन अगर इंटरनल रेजिस्टेंस डाल दिया तो तुम्हारे कैलकुलेशंस बढ़ जाता है. तो ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द कंप्लीट सर्किट. ये है पोटेंशियल डिफरेंस फॉर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस. यहाँ से तुम क्या कंक्लूड करोगे? यहाँ से तुम कंक्लूड करोगे दैट ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज, और टर्मिनल वोल्टेज स्टूडेंट्स इज ऑलवेज लेस देन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय R into I. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो ड्रॉप वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि वो वोल्टेज कम हो जाएगा, टर्मिनल Yes. वोल्टेज कम हो. Yes. So V, terminal voltage is always less than EMF, students. ये ध्यान में रखना, टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ बाय आर आई. लेकिन ये कभी होगा मालूम है? टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन ईएमएफ कभी होगा स्टूडेंट्स? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्ज. डिस्चार्जिंग, अगर सपोज मैंने तुम्हें दो इक्वेशंस दिए स्टूडेंट्स, V इज इक्वल टू E माइनस आर आई, एग्रीड, और दूसरा मैंने दिया V इज इक्वल टू E प्लस आर आई. तो मुझे बताओ ये इक्वेशन किसके लिए यूज करोगे और ये इक्वेशन किसके लिए यूज करोगे? फ्रेंड्स ये होगा जब भी बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है. टोटल एनर्जी में से टोटल एनर्जी कुछ एनर्जी ओवरकम कर रहा है आयॉन्स, तो बाकी का यूटिलाइज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स. ये क्या है? बाहर से तुम प्रोवाइड कर रहे हो, एक्सटर्नल टर्मिनल वोल्टेज सप्लाई कर रहे हो, तो तुम्हारा नेट ईएमएफ भी बढ़ेगा. ये हुआ चार्जिंग प्रोसेस का इक्वेशन, और ये हुआ डिस्चार्जिंग प्रोसेस. अगर कोई सपोज तुम गाड़ी, सपोज यू हैव अ कार, और बाय चांस डैड ने इग्निशन ऑफ कर दिया, लेकिन आगे की हेडलाइट डिम लाइट चालू की चालू है. वो तो दरवाजा बंद करके घर पे आ गया, लेकिन वो लाइट आगे चालू ही है. ही डिड नॉट सी इट इन फ्रंट. पूरी रात भर शुरू हो गई तो सुबह तो डिस्चार्ज हो गई पूरी बैटरी. तो तुम क्या करोगे? उस बैटरी को वापस चार्ज करने के लिए भेजोगे. 7-8 घंटे का वो चार्जिंग प्रोसेस होता है. तो चार्जिंग का मतलब क्या हुआ? केमिकल एनर्जी मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड बैक इनटू केमिकल. यानी तुम बाहर से उसको सप्लाई वोल्टेज दे रहे हो, यानी तुम्हें ईएमएफ वो हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा. तो व्हाट एग्जैक्टली ये चार्जिंग प्रोसेस इज V इक्वल टू E प्लस R, राइट? डिस्चार्जिंग इज V इक्वल टू E. क्या ये दोनों इक्वेशन क्लियर हुए स्टूडेंट्स? सर एक So बार can फिर you से बताओ explain ना. that again? Pardon? So can you explain again? If in case if I ask you what is the relation, चलो ये क्लियर हुआ, इसको मैं इरेज कर दूं? सर इरेज मत कर, लिखना है. तो मुझे बोर्ड चाहिए तो बता दो, तो मैं पूरा इरेज करके सिर्फ मैं इसके ऊपर अभी थोड़ा बोलूंगा, इसके ऊपर पता ओके सर. है.
there is no. Sir, you can use left part. E is equal to capital V plus small v. क्या ये क्लियर हुआ? हाँ सर. ये कहाँ से आया मालूम है स्टूडेंट्स? प्लीज पे अटेंशन. ध्यान से सुनना. Since we know that E is equal to W upon capital Q, capital V is equal to W upon Q, small v is equal to W upon Q. अभी ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. ये E का मतलब क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ये जो E है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ओके. Electromotive force is the work done. ध्यान से सुनना. To move a charge once around the complete circuit. यानी ये किस चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं? ये चार्ज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और आयॉन्स दोनों के लिए. Switch. Electromotive force is the work done to move a charge once on the complete circuit. तो अगर सपोज मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? वर्क डन बाय, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, वर्क डन बाय द सेल, work done by the cell is equal to work done by electrons to overcome external resistance plus work done by ions in order to overcome internal resistance. क्या ये क्लियर है? वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड. वर्क एंड एनर्जी आर कोरिलेटेड. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आएगा कि नहीं आएगा स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स. वर्क डन बाय द सेल is energy supplied by the cell because work and energy are correlated. What is the energy supplied by the cell? Energy supplied by the cell is partly taken by electrons. That means work done by the electrons, and partly energy is taken by ions. That means work done by ions. यहाँ पे to overcome external resistance, यहाँ पे to overcome internal resistance. ये जो work done है is equal to what? EQ cross multiplication. यहाँ पे होगा capital BQ, यहाँ पे होगा स्मॉल v क्यू. अभी मैंने क्यू, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपने क्लियरली बता दिया सर, आपने सिंपल वोल्टेज से हमने बता दिया था 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ रहे हैं, तो चार्ज तो कांस्टेंट था, तो क्यू कैंसिल हो जाएगा. आ गया तुम्हारा E इज इक्वल टू कैपिटल V टू स्मॉल v. एंड स्टूडेंट्स ये कांसेप्ट आता कहां से है? ये कांसेप्ट मैंने एक तो यहां से उठा के दिया, एक न्यूमेरिकल के हिसाब से, दूसरा मैंने थ्योरेटिकली भी दे दिया. तो ये है क्या? The total energy supplied by the cell is the work done by the cell. This energy supplied by the cell partly is used by the electrons to overcome external and partly is used by the ions to overcome internal. अगर मुझे rearrange करना है, what exactly? Then E is equal to V what? I into capital R, I into small r, or E is equal to I into capital R into small r. ये क्या फॉर्मूला हुआ? ये हुआ फॉर्मूला फॉर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंप्लीट सर्किट. So this is the formula for current flowing through which circuit? Complete circuit. I is equal to E upon capital R plus small r. यहाँ पे तुम देखोगे स्टूडेंट्स, तो तुम्हारा कैपिटल इज इक्वल टू E माइनस आर आर. यानी स्टूडेंट्स बैटरी का जो टोटल ईएमएफ था ना, टोटल पावर था, टोटल एनर्जी था, उसमें से जब भी आयॉन्स, ध्यान से सुनना, आयॉन्स कभी मोशन में होंगे स्टूडेंट्स. मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था? आयॉन्स विगरसली इलेक्ट्रोड्स की तरफ कभी जाओगे जब भी तुम बल्ब कनेक्ट करोगे. यानी स्टूडेंट्स जब भी तुम बैटरी में से एनर्जी ड्रॉ करना शुरू करोगे, बैटरी में से एनर्जी यूटिलाइज करना शुरू करोगे, उस टाइम पे तुम्हारा ड्रॉप वोल्टेज का इफेक्टिवनेस दिखाई देगा. एंड द डिफरेंस ऑफ दीस टू विल बी डिटरमिनेंट. ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्चार्जिंग का प्रोसेस. चार्जिंग के टाइम पे क्या होगा? व्हाट एक्जैक्टली चार्जिंग के टाइम पे? चार्जिंग के टाइम पे you have to add on with the EMF. What exactly? It's a drop. We need to increase the number of ions. Since वहां पे हमें उन ions का concentration, यानी suppose अगर तुम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो स्टूडेंट्स और उसके अंदर के ions का proportion कम हो जाता है, तुम क्या करते हो? वापस उसके अंदर एसिड डालते हो, उसका एक स्पेसिफिक ग्रेविटी लेवल पे लेके आते हो. Thereby we can get some good amount of ions in that case. तो वो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? V is equal to E plus RI होगा. सर मतलब मोबाइल चार्ज करते हैं तब वो
E प्लस आ रहा है रहता है, यस और जब यूज यस कर रहे हैं तब E माइनस आ रहा है। यस, यानी फिर यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे तुम देखोगे तो तुम्हारा V माइनस आर आई इज इक्वल टू ई, यानी यहाँ पे तुम्हारा बार का जो सोर्स होगा ना, उसका वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन द ईएमएफ, तभी जाके तो तुम चार्ज कर रहे हो ना। बैटरी का ईएमएफ कम है, तभी तुम बाहर से उसको टर्मिनल वोल्टेज दे रहे हो, उसको उसको बाहर से वोल्टेज सप्लाई दे रहे हो, तो उसकी वजह से तुम्हारा वो चार्जिंग प्रोसेस में ला रहा है। जैसे तुम्हारा बैटरी फुल्ली चार्ज हो गया, अभी तुम्हारा ई डोमिनेट करेगा, तो ई विल बी ग्रेटर देन वी। तो डिस्चार्जिंग के टाइम पे ई इज ग्रेटर देन वी, चार्जिंग के टाइम पे वी इज ग्रेटर देन ई। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. और ये तुम्हारा एक्सप्रेशन हुआ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स यही क्या, अगर सपोज मैंने तुम्हें स्मॉल आर का रिलेशन दिया, और एक्जैक्टली स्मॉल आर का रिलेशन आई कैन आल्सो राइट इन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ई बाय वी माइनस 1। ये भी फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट्स। internal resistance is equal to external resistance EMF upon terminal voltage minus 1, and you can get the answer students. अब मैं पूछूं सर ये कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, तो तुम क्या करोगे? सिर्फ इसको क्या करो, आई को v बाई कैपिटल डाल दो ना। हेलो, यही इक्वेशन को क्या करो, आई को क्या डालोगे, आई को क्या डालोगे, v अपॉन कैपिटल, कैपिटल v अपॉन कैपिटल स्टूडेंट्स, कैपिटल v अपॉन कैपिटल, फिर उसको इस तरफ ले लो, सब v को कॉमन निकाल दो, फिर तुम आंसर निकालोगे, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। यानी ये रिलेशन किसका है, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज में, टर्मिनल वोल्टेज है नॉट ड्रॉप वोल्टेज। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर, क्लियर है। कैन आई इरेज नाउ बोथ दीस? सर राइट सर, 1 minute. ओके, Sir, there you have written, I think, sir, that you have written E is greater than V. हाँ Sir, after that V should be greater than E, ना? By R है। इसको यहाँ पे, Sir नीचे, एकदम नीचे, bottom, इधर इधर right side. E is greater than V और V is less than E। हेलो, मैंने V is less than V लिया है, E is greater than V और V is less than E, ये तो डिस्चार्जिंग का ही प्रोसेस है, बाय स्मॉल आ रहा है। 1.5 is it, 1.5 is it greater than 1.2? सर बाय नहीं, आ वो रहा है, समझा मुझे। हाँ, तो ये समझिए, बाय आ रहा है, स्मॉल आ रहा है, इज हाँ, 1.2 लेस ये देन डिस्चार्जिंग 1.5? का होगा ना फिर। नहीं, ये चार्जिंग का, ये हाँ डिस्चार्जिंग का, ये डिस्चार्जिंग का ही प्रोसेस है, पूरा डिस्चार्जिंग का ही प्रोसेस है। हाँ सर, वही। हम्म। सर टर्मिनल वोल्टेज में वो चार्ज बस इलेक्ट्रॉन्स का ही होगा ना सर? बोलो। टर्मिनल वोल्टेज में ना, जो अपने फॉर्मूला लिखा है ना W/Q, वो उसमें चार्ज बस इलेक्ट्रॉन्स का ही होगा ना, टर्मिनल वोल्टेज। हाँ तो देख, इसको देख, अभी मैंने इसलिए मैंने पहले सिंपल वोल्टेज सेल बताया, उसमें चार्ज क्या फ्लो हो रहा था, चार्ज एक्सटर्नली और चार्ज इंटरनली वही फ्लो हो रहा था ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स गए उतने इलेक्ट्रॉन्स वापस आए। तो अगर +2 ही जा रहा है तो वही +2 ही वापस आ रहा है, यानी 2 ही जा रहा है, 2 ही आ रहा है, और वो टाइम टेकन भी कंसीडर इज वन, तो चार्ज फ्लोइंग रिमेंस कांस्टेंट, तभी जाके तो मैंने क्यू को कैंसिल कर दिया। ऑलराइट, यस सर, डन सर। सर डन।
तो अकेला ही पूछता है, नॉर्मन कुछ नहीं पूछता है, दीप क्यों नहीं पूछता है? हाँ, उनको सब पता है। हाँ, No, sir, I asked sometimes. अच्छा। Most of the time, I understand that. doesn't matter, it's good. Okay, now please pay attention. Norman, you all are from which branch? You Sir, and Nehru. Deep? दोनों नेरुल, तो नेरुल के सेशन शुरू हुए? No, sir, only I am from Nehru. अच्छा, you are from नेरुल. And Deep, you are from which? सब बोल रही अच्छा, you are from Borivali. Good. Okay, students. Now I told you about your concept of your external resistance. Students, I told you about concept of internal resistance, and I gave you a relation of EMF. And EMF is greater than terminal voltage. Are you getting it? And the formula for current flowing through a complete circuit is E upon capital R plus small r. And that's the general form of Ohm's law as applied to complete circuit, students. Okay. Now when you move further ahead, students, we have a relation with respect to your simple concept of your Ohm's law, students. Ohm's law के अंदर हम resistance के बारे में पढ़ते हैं, students. And then I'll be going with respect to carbon resistance, students. यानी अभी भी हम resistance के ऊपर ही जा रहे हैं. Entire matter is based on to resistance itself, students. Now, students, अगर मैं Ohm's law के हिसाब से देखूं, students, तो there are certain conductors which are ohmic conductors, students. और दूसरे होता है नॉन ओमिक, यानी जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को ओबे करते हैं वो ओमिक कंडक्टर्स हैं, दूसरे नॉन ओमिक. यानी अगर तुम देखोगे तो ओमिक कंडक्टर्स के अंदर तुम देखोगे तो क्या करोगे तुम? सर यहाँ पे ओम्स लॉ ओबे करते हैं, दे ओबे ओम्स लॉ, दे डू नॉट ओबे ओम्स लॉ भैया. यानी अगर Yes. मैं देखूं एग्जांपल पीएन जंक्शन डायोड आएगा. ओके, दिस इज पीएन जंक्शन डायोड आ जाएगा. गेटिंग इट? रेक्टिफायर्स आएगा. गेटिंग इट? ट्रायोड्स. गेट. ये सारे तुम्हारे नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं. यहाँ पे आई कैन कंसिडर ओमिक. कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ ओमिक कंडक्टर्स? ओमिक कंडक्टर्स का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो कैन आई गिव एन एग्जांपल? अच्छा, मुझे बताओ ओमिक कंडक्टर्स यानी ओबे ओम्स लॉ. चलो मुझे बताओ ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ फिजिकल टू है यानी इस Sir, अभी मैं current तुम्हें बताता हूँ स्टूडेंट. हाँ बोलो. sir, current inversely proportional to resistance. इनवर्सली डायरेक्ट सर नहीं, वोल्टेज what is current is inversely, लेकिन he is going for current with resistance is the constant. It's actually current is proportional to potential difference. Is I proportional to V is Ohm's law or V proportional to I is Ohm's law? क्या बोलते हो? No, students? I सर वी प्रोपोर्शनल टू आई ओम्स But Norman, are you saying it I proportional to V, ना? हाँ? yes, sir, I told that. Okay. ये I dependent variable है, V independent है ना. तो जब भी तुम ग्राफ भी करते हो या तुम proportional symbol लेते हो, अगर तो Y proportional to X लेते हैं ना. Dependent variable कहाँ पे होता है? On y-axis, independent variable on x-axis. So I should be proportional to V, and not V proportional to I. लेकिन इसमें दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है. ये क्या मालूम है? ये क्या मैकेनिज्म है? इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल मैकेनिज्म, स्टूडेंट्स. अभी देखो, अगर मैंने सपोज I proportional to V दिया तो मेरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा. अगर मैंने V proportional to I लिया तो भी मेरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, स्टूडेंट्स. लेकिन यहाँ पे क्या है? आई को कौन कंट्रोल कर रहा है? वी कंट्रोल. यानी यहाँ पे तुम वोल्टेज चेंज कर रहे हो, तुम बार बार एक्स्ट्रा नंबर ऑफ सेल्स ऐड करते रहोगे और तुम्हारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, स्टूडेंट्स, पासिंग थ्रू द ओरिजिन. दैट इज हाउ वी कंसीडर. लेकिन तुम वी प्रोपोर्शनल टू आई करते हो यानी वी डिपेंड्स ऑन आई, स्टूडेंट. तो यहाँ पे किसका यूज कर रहे हो? तुम रियोस्टैट का यूज कर रहे हो. यहाँ पे तुम नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ा रहे हो, स्टूडेंट्स, तुम रियोस्टैट यूज कर रहे हो. रियोस्टैट कंट्रोल करता है करंट को. ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, रियोस्टैट कंट्रोल करता है करंट को एंड इनडायरेक्टली करंट फिर कंट्रोल करेगा वोल्टेज को. यानी अगर तुम ध्यान से कहाँ पे भी कोई बुक्स देखोगे यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू I होगा ना, तो उनका डायग्राम ओम्स लॉ के साथ में रियोस्टैट होगा. लेकिन जब भी I प्रोपोर्शनल टू V और उसके साथ में डायग्राम देखोगे ना तो यहाँ पे रियोस्टैट होगा ही नहीं. यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाते हैं.
तो दोनों केसेस फाइन स्टूडेंट्स, I प्रोपोर्शनल टू V प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन फर्क यहाँ पे कि जब भी V प्रोपोर्शनल टू I रहता है तो यहाँ पे तुम्हारा स्लोप क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस। यहाँ पे तुम्हारा स्लोप क्या बन जाएगा, तो तुम बोलोगे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको क्या नाम दोगे, Conductance. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, C और G। व्हाट इज द यूनिट, ओम इनवर्स, Ohm in. O और C में क्या है इसका यूनिट, ओम इनवर्स मो उल्टा ऑफ ओम है सीमेन। ज्यादा करके हम मो यूज नहीं करते, हम ओम इनवर्स या सीमेन यूज करते हैं। तो व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस का यूनिट तो ओम है। दिस इज व्हाट स्टूडेंट शुड कीप इन माइंड। तो ये सारे ओमिक कंडक्टर्स है। नॉन ओमिक कंडक्टर्स के अंदर तुम्हारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, करंट वर्सेस वोल्टेज का देखो ग्राफ मैंने बता दिया, ये मैंने डायोड का ग्राफ बना दिया स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा ग्राफ है, I वर्सेस V, पीएन जंक्शन डायोड, ये फॉरवर्ड बायस हुआ, ये रिवर्स बायस हुआ। ये तुम पढ़ोगे कहाँ पे, सेमीकंडक्टर्स में पढ़ोगे आगे। तो जहाँ पे स्टूडेंट्स ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है वो क्या होगा, नॉन ओमिक, और जहाँ पे स्ट्रेट लाइन है वो ओमिक होगा। मुझे एग्जाम्पल्स कोई दे सकता है ओमिक कंडक्टर्स के, एग्जाम्पल्स को दे सकता है ओमिक कंडक्टर्स के स्टूडेंट्स। Which material? Okay, चलो मैं तुम्हें चॉइस दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। Will you use copper wire as a wire for experimental purpose for Ohm's law? अगर तुम्हें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करना है ओम्स लॉ के लिए तो तुम तुम्हारा वायर कौन सा लोगे, विल यू गो फॉर कॉपर, विल यू गो फॉर अलॉय, यानी विल यू गो फॉर प्योर मेटालिक कंडक्टर, विल यू गो फॉर अलॉय, विल यू गो फॉर सेमी कंडक्टर, what exactly you go for? Or copper. Copper. So is normally we go for alloy. So is the best alloy where you consider is where V upon R is equal to a constant. Since is named after an alloy constantin. It's an alloy of copper and nickel, and that is the resistance. Students, अगर मैं graphical representation देता हूँ, ध्यान से सुनना students, यानी प्योर मेटालिक कंडक्टर्स ओबे करते हैं ओम्स लॉ स्टूडेंट्स। अगर मैं ओम्स लॉ के बारे में बता दूं, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, करंट वर्सेस वोल्टेज, ओके, या इफ इन केस हाँ करंट वर्सेस वोल्टेज इफ आई हैव टू कंसीडर, तो स्टूडेंट्स ये जो तुम्हारा ग्राफ है ना विल बी स्ट्रेट लाइन ग्राफ, लेकिन बाद में ये नीचे की तरफ जा सकता है। स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा ना और बाद में तुम्हारा ग्राफ कब आ रहा है स्टूडेंट्स, तो ये जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है ओनली अप टू सूटेबल वोल्टेज, ये प्योर मेटालिक कंडक्टर्स के लिए है। ग्राफ स्टूडेंट्स, ग्राफ अगर मैं बोलूं कि स्लोप चाहिए तो ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन, मेरा पाथ स्ट्रेट होना चाहिए। आई गेटिंग इट? यानी ये किसके लिए, ये आइडियल कंडक्टर्स के लिए। ये जनरली स्ट्रेट तुम्हें किसके लिए मिलेगा मालूम है, तुम्हें अलॉय के लिए। ये जहां ये सूटेबल वोल्टेज स्टूडेंट्स, सूटेबल वोल्टेज तक ये किसके लिए है, प्योर मेटालिक conductor. That's why we generally use alloys in the experimental verification of Ohm's law. यानी सुनो, जब भी तुम ग्राफ देखोगे तो ग्राफ में जब भी तुम प्योर मेटल, सपोज अगर मैंने कॉपर वायर लिया और उसको मैंने वोल्टेज कनेक्ट कर दिया और करंट में एमीटर से मेजर कर रहा हूँ और धीरे धीरे मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता हूँ तो करंट भी बढ़ेगा, लेकिन रेशियो कांस्टेंट रहेगा कब तक, एक सूटेबल वोल्टेज, उसके बियॉन्ड अगर मैंने वोल्टेज बढ़ाना शुरू कर दिया ऑटोमेटिकली करंट कम होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि सर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट ज्यादा आएगा, करंट ज्यादा आने की वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा ड्रिफ्ट होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होंगे तो कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन से हीट एनर्जी बढ़ेगी, हीट एनर्जी से क्या होगा, रेजिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है, करंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, तभी जाके ग्राफ बेंड हो रहा है। तो प्योर मेटालिक कंडक्टर्स आर नॉट द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ Ohm's law. We simply go for alloys, constantin, magnenin, these are the alloys we consider. नाइक्रोम वायर नहीं ले सकते हैं, नाइक्रोम वायर इज अ वायर यूज्ड फॉर हीटिंग इफेक्ट। वायर को गर्म करने के लिए अगर तुम लेते हो गीजर्स वगैरह में, इलेक्ट्रिक आयन गीजर्स, इलेक्ट्रिक टोस्टर्स, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। यस, तो ये तुम्हारा ग्राफिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स। अगर सपोज मैं तुम्हें फॉर्मूला दूं स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, अगर मैं फॉर्मूला दूं R इज इक्वल टू रो L बाय A, तो रो क्या है, रेजिस्टिविटी स्टूडेंट्स, एग्रीड।
अगर मैं सपोज रेजिस्टिविटी को मैं करता हूँ, सो रो इज इक्वल टू व्हाट, आर ए बाय एल, इसका यूनिट क्या होगा, ओम मीटर. व्हाट इज दिस वी कॉल, दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी और Specific resistance. resistance. Friends, what are the factors on which resistivity or specific resistance depends? तो बोल सकते हैं factors on which resistivity or specific resistance depends. कौन से factors हैं? तो तुम क्या बोलोगे? It depends only on material and temperature of conductor. Students अभी ध्यान से सुनना, resistance क्या है? Resistance क्या है? Resistance is a phenomena. Students, resistance is a phenomena of obstruction of electrons by the atom of the conductor. Resistivity is a characteristic property of a material of a conductor. ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, अभी अभी इसका दोनों के बीच में फर्क क्या है? ध्यान से स्टूडेंट, सपोज मैंने तुम्हें एक सर्किट बनाने के लिए बोल दिया, ओके, सपोज मैंने एक इंटीग्रेटेड सर्किट या एक टाइप का छोटा सा सर्किट मैंने बनाने के लिए बोल दिया, और उस सर्किट के अंदर स्टूडेंट्स आई हैव यू टू मेक मैक्सिमम, एक पाथ में मुझे मैक्सिमम करंट चाहिए और एक पाथ में मुझे कम करंट चाहिए, लेकिन मैंने तुम्हें लेंथ उतना ही दिया है, एरिया उतना ही दिया, तो तुम क्या करोगे? तुम मटेरियल चेंज करोगे ना. लेंथ भी वही दिया है, एरिया भी सेम दिया है, लेकिन आप बोल रहे हो सर एक में करंट ज्यादा चाहिए, एक में करंट, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने प्रॉपर्टी चेंज की, यानी मैंने दूसरे अलग दो वायर्स ले लिए. एक वायर के अंदर रेजिस्टिविटी कम होगा तो वहां पे कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, दूसरा रेजिस्टिविटी ज्यादा देगा तो उसका कंडक्टिविटी कम होगा. तो ये रेजिस्टिविटी है क्या? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ, unit area of cross section. It simply depends on the material and temperature of the conductor. Friends, resistivity depends on the material. यही दो factors के ऊपर resistivity depends होता है. Resistance किसके ऊपर depend होता है students? चार factors के ऊपर. कौन सा नाम मैंने दिया था? मान. Material of the conductor, area of cross section of the conductor, length of the conductor, and temperature. What is reciprocal of resistivity? Students, reciprocal of resistivity is called conductivity. It is Siemens meter inverse. क्योंकि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगा तो सीमेंट मीटर इनवर्स. सो ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस अ फिनोमेना, कंडक्टेंस इज अ फिनोमेना, resistivity is a characteristic property, conductivity is a characteristic property, reciprocal of resistance is conductance, reciprocal of resistivity is conductivity. This is ohm inverse या Siemens, this is Siemens meter inverse. Consider. The conductance और conductivity पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. क्या बोल रहे हो? कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में था. Okay, fine. ये तुम जब भी शायद अगर तुम CS के स्टूडेंट्स होंगे तो वहां पे भी तुम लोग ने कंडक्टिविटी भी के बारे में, कंसेप्ट ऑफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के बारे में पढ़ा होगा. यस सर, मोबिलिटी. ये सो वहां पे आता है तुम्हारा ये कंसेप्ट. कैन आई इरेज दिस अभी? सीएस मतलब कंप्यूटर्स, कंप्यूटर साइंस जिसका सब्जेक्ट होगा. कंप्यूटर साइंस में नहीं. CS है यार, तुम लोग ने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स लिया होगा उसमें भी आता है स्टूडेंट्स. ये फर्स्ट टॉपिक्स या दे आर वेरी सेमीकंडक्टर्स के टॉपिक है सर. फ्रेंड्स, कैन आई इरेज दिस? No sir. What I have written that second PN junction diode after that. PN junction had rectifiers, triodes. डायोड का मतलब डाई मतलब दो, ओडी मतलब इलेक्ट्रोड का पीछे का ओडी आ गया. डायोड दो इलेक्ट्रोड, ट्रायोड का मतलब तीन इलेक्ट्रोड. Okay.
Can I erase? Sir, 1 minute, last. सर डन। सर उसको कपा भी बोलते हैं ना? Yes, kappa. Greek alphabet. सर ओमिक कंडक्टर दिया होगा तो हम ये सब यूज कर सकते हैं ओम्स लॉ का। अभी भी टॉपिक हमारा रेजिस्टेंस ही है, टेंशन मत लेना तू। हाँ सर। Resistance dependence on temperature. Now suppose if I happen to go for pure metallic conductor students, so every conductor students, if I happen to go for pure metallic conductor, सपोज अगर मैंने कंडक्टर को एट ये यहाँ पे मैंने टेम्परेचर लिया इन डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे रेजिस्टेंस इन ओम्स। सपोज अगर मैंने कोई कंडक्टर लिया एट 0 डिग्री सेल्सियस, will that conductor will have resistance at 0 degree Celsius also? Of course, there are free electrons. Molecular motion को तुमने सीज तो नहीं किया ना, तो आपने you haven't taken to absolute zero ना, मैंने 0 डिग्री सेल्सियस लिया, not at absolute zero, -273, जहाँ के अगर चाहो तो तुम मॉलिक्यूलर मोशन को सीज कर सकते हो। वो कहाँ पे होता है? सुपर कंडक्टर्स में। हम मेटालिक कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी स्टूडेंट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस आल्सो द कंडक्टर हैज सम रेजिस्टेंस। लेट अस से दिस इज R0 एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। सपोज अगर टेम्परेचर बढ़ता है, ध्यान से सुनना, किसका? प्योर मेटालिक कंडक्टर। अभी मैं बोलूँ कि टेम्परेचर कैसे बढ़ाओगे? सर आपने अभी तो इसके पहले वाले फ्रेम में बता दिया था कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा, स्टूडेंट्स वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, लेकिन एक वोल्टेज के बाद में जब और वोल्टेज बढ़ाना चाहोगे तो इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन बढ़ता है, उससे हीट एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाना, प्लीज स्टूडेंट्स, मेटालिक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाना यानी उसको गर्म नहीं करना, उसको सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट करना और सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाते रहो तो ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। Now what happens if I increase the temperature? Students, if the temperature increases, resistance of pure metallic conductor also will increase. The graph will be again a straight line, but will not start from origin. To get 0 degree Celsius, the resistance, there is some resistance of that particular conductor. Let us say that this is the resistance at a given temperature T degree Celsius, and the resistance at this alpha will be RT. Agreed? Now, if I happen to go for what exactly your relation, what exactly your relation over here I can consider is, you can consider as alpha. What does alpha here stand for? This is called as coefficient of temperature
dependence on resistance. Since alpha is coefficient of temperature, TURE, temperature dependence on resistance. Alpha is coefficient of temperature dependence. And what is alpha we consider is, that is increase in resistance upon original resistance. Degree Celsius rise in temperature. What is the unit? Degree Celsius inverse. Since तुम लोगों ने it's done it in properties of matter, mechanical properties of matter या thermal properties of matter के अंदर क्या है? Alpha, beta, gamma, coefficient of linear expansion, Yes. coefficient of exponential expansion, coefficient of cubical expansion, 1:2:3. वैसे ये है. ये alpha क्या है? Coefficient of But temperature it was dependence. not in heat and thermodynamics. Yes. So it's actually we consider as what? It's mechanical properties. It's thermal properties of matter. Students, it comes under thermal properties of matter. We're getting it. Alpha, beta, and gamma we consider. तो यहाँ पे भी वैसे ही है students. यानी अगर तुम देखोगे ना RT minus R0, Y2 minus Y1 upon X2 minus X1 we consider. That simply we take it as the perfect. यानी ये तुम्हारा coefficient of temperature dependence होगा students. Now suppose अगर मैंने पूछा can you find out the resistance at a given temperature, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? Yes. Cross multiply करोगे तो what exactly? RT is equal to R0 into bracket what? 1 plus alpha into difference in temperature. Yani students, what exactly coefficient of temperature dependence on resistance? Is it positive coefficient? तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए yes. It's positive coefficient of temperature dependence on resistance. उसका मतलब अगर temperature बढ़ेगा, resistance बढ़ेगा. Students, in case of pure metallic conductor, temperature अगर बढ़ता है, resistance बढ़ेगा, current will certainly decrease. ये ध्यान रखना. लेकिन वही अगर मैंने एग्जांपल लिया सेमीकंडक्टर्स के लिए स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर्स के लिए स्टूडेंट्स, तो सेमीकंडक्टर्स क्या है? दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट स्टूडेंट्स. यहाँ पे अल्फा क्या है? नेगेटिव. दैट मींस ओवर हियर देयर नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस. स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो रेजिस्टेंस कम होगा, करंट विल इंक्रीज. For semiconductors, students, semiconductors are temperature dependent. क्योंकि semiconductors के अंदर students current is not because of conduction electrons. In semiconductors, current in semiconductors is simply due to motion of electrons and holes. That means we simply consider motion of holes we consider, or diffusion of charges we consider. तो वहां पे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम बात नहीं करते हैं. तो ये ध्यान में रखना, सेमीकंडक्टर्स के अंदर अल्फा नेगेटिव कोएफिशिएंट है, प्योर मेटालिक कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस है. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Yes. Now suppose अगर मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देता हूं तो व्हाट इज दैट? सर R is equal to rho L by A. What exactly? Rho is equal to R A by L. ये है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला. अगर सपोज मुझे रेजिस्टिविटी के हिसाब से ये फॉर्मूला लिखना है, तो स्टूडेंट्स कैन आई से R is equal to rho L by A I can consider. तो कैन आई से rho at a particular temperature, rho at 0 I'll consider, into bracket 1 plus alpha into delta T. Can I write down same in terms of resistivity? ये तो था ना. R का फॉर्मूला क्या है? rho L by स्टूडेंट्स, है ना. तो मैं RT की जगह पे क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स? RT की जगह पे क्या लिखूंगा? रो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है. ये ओरिजिनल है 0 डिग्री सेल्सियस, लेंथ सेम था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी. ये कैंसिल हो गया. एम आई गेटिंग द सेम फॉर्मूला स्टूडेंट्स? यानी ये फॉर्मूला रेजिस्टिविटी के लिए गया है स्टूडेंट्स. यानी कभी प्रॉब्लम्स रेजिस्टेंस के ऊपर पूछेंगे, कभी रेजिस्टिविटी के ऊपर पूछेंगे. डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दैट कि रेजिस्टेंस के ऊपर रेजिस्टिविटी कैसे आया. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir, clear. ओके. वही अगर तुमने सेमीकंडक्टर्स के लिए अगर ये एक्सप्रेशन लिया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस. लेकिन फॉर प्योर मेटालिक कंडक्टर इट्स पॉजिटिव कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस. अगर किसी ने रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर किया, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, प्योर मेटालिक कंडक्टर्स के लिए क्या होगा? ये टेम्परेचर है, ग्राफ ऐसे होगा स्टूडेंट्स. ये है प्योर मेटालिक
टेम्परेचर, अगर मैं रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर के लिए जाता हूँ स्टूडेंट्स, I getting it? For semiconductors, as temperature increases, resistivity will decrease. The graph will be hyperbolic. The graph will be declining in this case, students. अगर मैं जाता हूँ alloys के लिए students, resistors और सेमीकंडक्टर है ना सेकंड वाला? Pardon? सेकंड वाला सेमीकंडक्टर के लिए ना? Yes, second वाला semiconductors. थर्ड वाला alloys के लिए ध्यान से सुनना, resistivity almost remains constant. Almost remains constant. Graph parallel होगा. यानी ग्राफिकल भी अगर तुम देखोगे तो यू कैन गेट योर आंसर अकॉर्डिंगली. और ये जो रेजिस्टिविटी ग्राफ कर्व है ना स्टूडेंट्स, जो कर्व का जो स्ट्रेट पार्ट है ना स्टूडेंट्स, स्ट्रेट पार्ट ऑफ द कर्व यहाँ पे ऐसे दो पॉइंट्स लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, उसके रिलेटेड तुमने स्लोप तुम निकाल सकते हो. क्या ये क्लियर हुआ? Differentiating at that point. Yes, differentiating error particularly. Can I erase this, students? 1 minute. Sir, done. Okay. सर तो अल्फा 0 रहता होगा ना हाँ, एलआई के लिए? किसके लिए? एलआई के लिए हाँ, क्या अल्फा 0 रहता होगा ना? अल्फा भी से, लेकिन ये ग्राफ ऑलमोस्ट पैरेलल है, यानी यू माइट गेट सम रेजिस्टेंस बट दैट इज वेरी स्मॉल, यू कैन कंसीडर टू बी. सर यार म्यूटेड. Now we speak about carbon resistance, students.
Friends, ये जो रेजिस्टेंस है ना, कार्बन रेजिस्टेंस आर एक्चुअली विच आर वेरी पोर्टेबल। क्योंकि अगर तुम रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हो तो वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर तुम देखते हो स्टूडेंट्स, तो रियोस्टैट बड़ा होता है, इज नॉट टू दैट एक्सटेंट पोर्टेबल। इवन रेजिस्टेंस बॉक्स इज नॉट टू दैट एक्सटेंट पोर्टेबल, गेटिंग इट। और उसके अंदर तुम्हें ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलता। फिक्स रेजिस्टेंस को फिक्स रेजिस्टेंस ही होते करके, इन दैट केस आल्सो दैट डिपेंड्स ऑन द साइज। लेकिन अगर तुम्हें कॉम्पैक्ट नेचर बनाना है एंड वेरी पोर्टेबल, क्योंकि जैसे जैसे तुम सर्किट बनाते हो स्टूडेंट्स, अगर तुम सर्किट क्रिएट करते हो तो सर्किट के अंदर छोटे से स्पेस के अंदर वहां पे रजिस्टर बिठाना, तो उसको उसको वो रजिस्टर उतना छोटा होना जरूरी है। तो और ऊपर से उसकी वैल्यू कैन बी इनटू हंड्रेड्स और थाउजेंड और फ्यू किलो ओम्स, 1000 किलो ओम्स, एंड वेरी स्मॉल आल्सो। तो ये जो वेरिएशन इन इन रेजिस्टेंस वो कौन प्रोवाइड करता है? कार्बन रेजिस्टेंस। ऊपर से दे आर वेरी 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 पोर्टेबल, वेरी स्मॉल, हार्डली a size of 1 centimeter. Have you seen carbon resistant students? No students? Most of them शायद प्रैक्टिकल लैब में देखा होगा, सीएस के स्टूडेंट्स ने भी देखा होगा रेक्टिफायर्स वगैरह के टाइम पे। सर Students, ये नहीं, जो अभी तक ये नहीं है रेजिस्ट, मतलब सीएस के लिए ये नहीं है। मैं 11 12 दोनों सीएस है। ओके, ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है मतलब? ये कार्बन रेजिस्टेंस लिमिट करता है, लिमिट करंट फ्लो। यानी करंट फ्लो का एक लिमिट डिसाइड करने के लिए हम कार्बन रेजिस्टेंस यूज करते हैं, ठीक है। और ये सिंपल वायर बाउंड होते हैं स्टूडेंट्स। उनकी हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर मोस्टली का, यानी अगर तुम्हें हाई वैल्यू चाहिए ना स्टूडेंट्स, वो सारे कार्बन रेजिस्टेंस ही होते हैं जो हाई वैल्यू वाले होते हैं, ठीक है। और उनका उनका कलर कोडिंग के हिसाब से हमें पता चलता है, उसके ऊपर कलर कोडिंग होता है, उससे तुम्हें पता चलेगा करके कि व्हाट एग्जैक्टली द रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कार्बन रेजिस्टेंस। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? अभी कार्बन रेजिस्टेंस दिखते कैसे स्टूडेंट्स? इट्स अ काइंड ऑफ अ सिंपल सिलिंड्रिकल स्टूडेंट्स, एक सिंपल सिलिंड्रिकल टाइप का सरफेस होता है स्टूडेंट्स। You can consider cylinder or an oval shape, you can consider। और इसके ऊपर क्या होता है मालूम है स्टूडेंट्स? देयर आर 3 rings, पेंटेड रिंग्स, यानी पेंटेड कलर्स होता है, जिसको जो रिंग फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स। ये है तुम्हारा फर्स्ट रिंग, प्लीज पे अटेंशन ना। ये तुम्हारा सेकंड रिंग, ये तुम्हारा थर्ड रिंग, और जो चौथा रिंग होगा ना स्टूडेंट्स, वो हमेशा दूर होगा। यानी अगर तुम कार्बन रजिस्टर को ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो, तुम इजीली रिंग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। हमेशा फोर्थ रिंग विल बी अवे फ्रॉम द अदर 3। जहां पे तुम 3 रिंग्स को साथ में देखते हो तो तुम्हारा फर्स्ट सेकंड थर्ड वहां से शुरू हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी तुम्हारी वैल्यूज को आराम से तुम डिटेक्ट कर सकते हो। So students, what exactly carbon resistors? Carbon resistors can give a high value of resistance, students. Okay, they have a limit of current flowing through it, students. Okay, they are very small, portable, and they are inexpensive. I getting it? They have suitable color codes, so they can give you a certain few values in ohms you can consider. Okay, the color coding ये जो है वो एक standardized color coding है students, जो accepted है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के अंदर। ये accepted है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के अंदर तुम अगर कार्बन रेजिस्टेंस बताओगे तो उनको तुरंत पता चल जाता है और वो यूटिलाइज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर वो स्टैंडर्डाइज है, वो यूटिलाइजेशन में प्रैक्टिस में लाया गया है। एंड इफ यू वांट टू सी, दिस इज हाउ इट इज। तो ये तुम्हारा कार्बन रजिस्टर है, देखो, कैन यू सी इट? सर सर उसके ऊपर के रिंग नहीं दिख रहे पर। हाँ, यानी अगर वो प्रॉपर नहीं है करके, दैट्स व्हाई। या थोड़ा सा दूर रुकूंगा तो तुम्हें शायद दिखेगा, तो कीप इट फोकस थोड़ा करोगे तो होगा। यानी ये देखो कितना छोटा सा है और उसके ऊपर रिंग्स है। यही चीज अगर तुम देखोगे तो तुम आईसी में फिक्स करते हो, उसमें ऐसे है। देखो इंटीग्रेटेड सर्किट, ये तुम्हारा एलईडी है, ये लाइट एमिटिंग डायोड है, दिवाली की लाइट्स में ये होता है। ये बीड्स है, इसको हम बोलते हैं बीड्स, और ये तुम्हारा कार्बन रजिस्टर है, इसके ऊपर रिंग्स है। अलग अलग का अलग अलग सर्किट होता है। एंड पीछे से देखो,
ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होता है ना, वो सारा एल्यूमिनियम और सिल्वर डॉट्स होते हैं। सोल्डरिंग सिल्वर का होता है, बिकॉज सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हर एक जो कार्बन रेजिस्टर है ना स्टूडेंट्स, हर एक का वैल्यू है, यू कैन इजीली गेट इट स्टूडेंट्स। द फर्स्ट स्ट्रिंग एक्चुअली speaks about the first digit। ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग है, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, ओके। फर्स्ट रिंग speaks about first digit, किसका? of the resistance। second ring speaks about the second digit of that value of the resistor। third ring always speaks about the multiplier, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ये जो रेजिस्टेंस है इट कैन बी इनटू थाउजेंड्स आल्सो, तो इट्स मल्टीप्लिकेशन, और इनटू सेवरल थाउजेंड किलो ओम्स, तो मल्टीप्लायर है, इनटू द पावर ऑफ में आएगा ये। और जो लास्ट रिंग है, फोर्थ रिंग, वो क्या बताता है? टॉलरेंस, यानी परसेंटेज एरर। ये क्या बताता है? टॉलरेंस, यानी कितना परसेंटेज प्लस या माइनस की वैल्यू हो सकती है। तो हमेशा स्टूडेंट जब भी तुम रिंग्स देखोगे ना, तो इसको देखना है, एंड बेस्ड ऑन टू दैट यू कैन गेट योर आंसर अकॉर्डिंगली। द फर्स्ट रिंग गिव्स यू द फर्स्ट डिजिट, सेकंड रिंग गिव्स यू द सेकंड डिजिट, थर्ड रिंग गिव्स यू द मल्टीप्लायर, एंड द फोर्थ रिंग गिव्स यू द टॉलरेंस। अभी हाउ टू रिमेंबर इट? इसका एक पैटर्न है, इसका जब भी तुम ये एमसीक्यूज करते हो स्टूडेंट्स इसके, तो तुम्हें ये मेमोराइज करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक मिनोमिक्स की तरह तुम मेमोराइज कर सकते हो स्टूडेंट्स। अभी तुम कार्बन रेजिस्टेंस के हिसाब से देखोगे तो ये कलर्स क्या है, तुम्हें कलर कोड्स के बारे में होना जरूरी है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर्स, ये रिंग्स सारे अलग अलग कलर्स के। नाउ व्हेन आई ट्राई टू पुट फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, बी रॉय of Great Britain had very good wife, had very good wife. Students, B.B. Roy of Great Britain had very good wife, and she loves a lot of gold, silver, और नीचे मैं लिखता हूँ no color, यानी she loved lots of gold, silver and platinum, लेकिन मैं platinum नहीं लिख रहा हूँ, मैं platinum of course कलर है, तो यहाँ पे आ जाएगा no color। स्टूडेंट्स यानी देखो मैंने क्या किया मालूम है, मैंने ये रिंग्स का एक कोडिंग दे दिया मैंने तुम्हें, यानी अभी स्टूडेंट्स को ये एक पैटर्न ध्यान में रखनी जरूरत है। अभी कैसे पैटर्न, अभी ये सोचो कि हाउ टू रिमेम्बर इट स्टूडेंट्स। ये जो बेबी रॉय था ना, वो एकदम काला कलूटा था और उसको वाइफ मिली बहुत ही ब्यूटीफुल। तो जब भी तुम उसके पैटर्न याद रखोगे ना, तो ये सोचो कि एक काला था तो उसको बीबी, यानी दो बिया है ना, दो बिया है, तो कौन सा वाला काला था, यानी सबसे पहले ब्लैक तुम पकड़ो, बाद में ब्राउन पकड़ो। अगर दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर, क्योंकि दो बी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज जाते हैं, ये भी और ये भी कौन सा कलर लोगे, और वापस ये भी आ रहा है, तो तुम शुरू कैसे, तो सिंस वो वाज वेरी डार्क, तो तुम ब्लैक से शुरू करो, फिर इसका तो ब्राउन ही आएगा और ये ब्लू आ जाएगा। अभी देखो दो जी आ गया, एग्रीड, दो जी। अगर ये पूरा काला कलर था, तो इसकी जो वाइफ थी ना, शी वॉज हैविंग ग्रे हेयर, व्हाइट हेयर, शी वॉज स्लाइटली ओल्ड, तो ये इसको तुम ग्रे पकड़ लेना और ये तुम ग्रीन पकड़ लेना, बस यही पैटर्न को याद रखना है। यानी कलर्स के अंदर स्टूडेंट्स को क्या डिफिकल्टी होती है कलर्स को रिमेम्बर करने के लिए। तो now if you consider what is it, how to remember? B.B. Roy of Great Britain had very good wife, she loved lots of gold, silver and no color means platinum। यानी कलर्स कौन सा है? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। क्या ये कलर्स का मेनोमिक्स क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यस सर। अभी तुम डिजिट्स के बारे में ध्यान में रखो, डिजिट्स अगर तुम रखोगे तो तुम्हें वाइट तक ही जाना है स्टूडेंट्स, डिजिट्स तुम वाइट तक ही बताओगे, एग्रीड। फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट्स एग्रीगेट। तुम्हारा जो मल्टीप्लायर होगा ना स्टूडेंट्स, मल्टीप्लायर तुम सिल्वर तक जाओगे,
मल्टीप्लायर तुम सिल्वर तक जाओगे, और जो तुम्हारा टॉलरेंस होगा ना, टॉलरेंस स्टूडेंट्स, टॉलरेंस तुम्हारा फर्स्ट के लिए होगा, सेकंड के लिए होगा टॉलरेंस, एंड देन लास्ट 3 ऑफ देम, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर, टॉलरेंस इन तीनों के लिए होगा, यानी 3 + 2 5 परसेंटेज एरर। नाउ हाउ डू यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट रिंग है क्या दिखाता है, फर्स्ट डिजिट, तो फर्स्ट डिजिट यानी वी स्टार्ट्स विद 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब तक तुम व्हाइट पे आओगे तब तक तुम्हारा डिजिट 9 आना चाहिए, शुरू करो 0 से। सेकंड डिजिट में भी एग्जैक्टली सेम पैटर्न, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ना इफ आई हैपन टू गो फॉर मल्टीप्लायर, तो सबसे पहले तुम कौन सा मल्टीप्लाई करो, ये 0 है, 10 to the power of 0 डाल दो, that is equal to 1। तो into मल्टीप्लाई का मतलब into 10 to the power of 0, that is simply equal to 1। ये क्या होगा, मल्टीप्लाई into 10 to the power of 1, 10 to the power of 2, 10 to the power, यानी जो तुम्हें वेरिएबल सामने दिखता है वो 10 to the power of 3, 10 to the power of 4 5 6 7 8 and 9। Agreed? Now when I go for the next part of it, gold and silver, students, gold and silver का tolerance, फ्रेंड्स गोल्ड एंड सिल्वर का टॉलरेंस विल बी लेस। इनका जो टॉलरेंस होगा ना वो 10⁻⁻1 एंड 10⁻²। ये है गोल्ड का और ये है सिल्वर का। बाकी सबका पॉजिटिव पावर है, इन्हीं का नेगेटिव पावर है, ये ध्यान में रखना व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नाउ यू गो फॉर परसेंटेज एरर, दैट इज द फोर्थ थिंग, स्पीक्स अबाउट द टॉलरेंस। सॉरी, ब्लैक के लिए नहीं है स्टूडेंट्स, ब्लू और रेड के लिए, वेरी सॉरी, ब्लू और रेड के लिए। दिस इज फॉर ब्लू एंड रेड। ब्लू के लिए तुम्हारा ±1% होगा, ये ब्लू के लिए, और रेड के लिए सर वो ब्राउन है ना, सॉरी वेरी सॉरी, ब्राउन, वेरी सॉरी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ब्राउन है ब्राउन है ब्राउन है स्टूडेंट्स, ब्लैक के लिए है, ब्राउन और रेड के लिए। ओके, you're very 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 focused, हाँ, वेरी गुड। ये ब्राउन है, और सेकंड वाला कौन सा है तुम्हारा, ±2%, ये रेड के लिए। नीचे वाले के जो लिए है गोल्ड सिल्वर एंड नो कलर, दीज आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टूडेंट्स, 5% 10% 20%, यानी ±5% इसके लिए गोल्ड, ±10% इसके लिए सिल्वर, ±20% इसके लिए नो कलर। ये ध्यान में रखना। अब मैंने नाम इसलिए लिखा कि वो मिसमैच नहीं हो जाए और हॉरिजॉन्टल रोज के साथ में। तो जिस बंदे को ये टेबल अगर पता चल गया और अगर फिर मैंने रिंग्स के बारे में बता दिया, यू कैन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर। और ये स्टैंडर्डाइज है स्टूडेंट्स, दे आर पुट इनटू प्रैक्टिस, दे आर यूज्ड आल्सो। अगर शायद तुम्हारे घर के अंदर रिमोट होगा या तुम्हारा एसी होगा, स्प्लिट एसी, तो उसके अंदर आईसी होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, तो कहाँ पे तुम्हें कार्बन रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो उसके अंदर तुम्हारे रेजिस्टेंस वैल्यू है, जहाँ पे 4 रिंग्स होगी, 3 होगा, चौथा वाला फार अवे होगा। तो वापस स्टूडेंट्स ये फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, मल्टीप्लायर में 10⁻9 तक जाएगा टिल व्हाइट, गोल्ड और सिल्वर 10⁻², 10⁻1 एंड 10⁻²। When you go for percentage tolerance के बारे में students, black is there is no tolerance for black in that case, of course. Blacks we consider, यानी ऐसे ध्यान में रखो, black tolerance नहीं है, we can't tolerate in that case। जैसे US में blacks को tolerate नहीं करते, है ना, सारे गोरे हैं, वो वहाँ पे काले लोगों को tolerate नहीं करते, इंडिया में सबको tolerate करते हैं। तो यहाँ पे टॉलरेंस यानी वैसे रखो, टॉलरेंस यानी ±1% फॉर ब्राउन, 2% फॉर रेड। नीचे जाओगे तो 5 10 एंड 20 है। ये जो नो कलर है, आई कैन कंसीडर दैट मैन एज प्लैटिनम। Menomics for the last time students, B.B. Roy of Great Britain had very good wife. She loved gold, silver and platinum. That is not. इसी के related suppose अगर मैं एक simple एक question तुम्हें दे दूँ students, कि suppose if I happen to consider कि तुम्हारे पास एक carbon resistor है students, और उसके ऊपर जो rings है, और students उसके जो rings है, they are yellow, violet, orange and gold. So can you tell me what is the resistance of this? तो कैसे calculate करोगे students? तुम्हारा रेजिस्टेंस क्या होगा, येलो, तो तुम देखोगे येलो। सर फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट गोल्ड और सिल्वर के लिए क्या रहेगा फिर? इसके लिए गोल्ड और सिल्वर 8 और 9 होगा ना, गोल्ड होगा तो 8 होगा
और सिल्वर इसके लिए है नहीं, ये गोल्ड और सिल्वर कभी नहीं होगा सेकंड डिजिट। तभी तो यार हम लोग ये कलर के अंदर से ये लेते हैं तुम्हारा मतलब कुछ होगा ही नहीं क्या डीजे? ये नहीं नहीं नहीं, ये हमेशा तुम्हारे ये कलर्स होंगे। Your first two digits will always speaks about black to white. ऊपर ब्लैक शुरू होता है, नीचे व्हाइट पे खत्म होता है बस। तुम्हारा मल्टीप्लायर के अंदर पॉसिबिलिटी हो सकता है, टॉलरेंस के अंदर पॉसिबिलिटी हो। एग्रीड? यस सर। तो इसका अगर मैं देखो तो येलो यानी व्हाट इज द येलो? फर्स्ट स्ट्रिंग स्पीक्स अबाउट फर्स्ट डिजिट, तो येलो का सर फर्स्ट 4 डिजिट 8 4 आया। ठीक है, वायलेट क्या है? 7 है। हाँ स्टूडेंट्स, हाँ सर। सर हाँ 7 है। सर फिर उसके बाद में तुम्हारा ऑरेंज क्या दिखा रहा है? 10 to the power 3। तो ये इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 आ गया, देखो ना, 2 डिजिट यानी 47,000 आ गया। देखो ये रेजिस्टेंस इसका आ रहा है 47,000, दैट्स व्हाट वी कंसीडर। और फिर गोल्ड का क्या है? प्लस और माइनस, टॉलरेंस क्या है? 5%। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यस यानी स्टूडेंट्स अगर तुम देखोगे ना, ये तुम्हारा है प्लस और माइनस 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज आती है। अगर मैं इसका बोलूं व्हाट इज द अपर लिमिट एंड व्हाट इज द लोअर लिमिट, यानी व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टेंस विल बी, तो तुम्हारा इसका रेजिस्टेंस तुम्हारा अगर होगा तो इट कैन बी 47 किलो ओम्स। आंसर सुनना, 47 किलो ओम्स प्लस 47 इंटू 5/100, ये एक आंसर है। एग्रीड? 47 into 500। 47% ना, प्लस प्लस 5% है ना उसका, तो एक एडिशन में मैंने डाल दिया। दूसरा रेजिस्टेंस क्या होगा? 47 किलो ओम्स माइनस 47 इंटू 5/100, है ना स्टूडेंट्स? Plus or minus 5% is a tolerance. Tolerance actually speaks about the limit of this. यानी कहाँ से कहाँ तक का रेंज मुझे मिल सकता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरा आंसर क्या है? देखो 47 यानी कहने से 47,000, ये क्या होगा सर? ये होगा 0.47 इंटू 5, तो 7 5 35, 5 4 20, 23, 2.35 किलो ओम्स मल्टीप्लाई बाय 1000, तो कहने से 2350 हो जाएगा। तो ये एडिशन होगा कि नहीं होगा? हाँ स्टूडेंट्स, यस वो ही तुम्हारा डिक्रीज हो जाएगा अदर केस में। क्या ये क्लियर हुआ? स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल? यानी whenever they ask you students the resistance, one can simply, अगर तुम्हें ऑप्शन भी देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो शायद वहां पर वैसे लिखा होगा 47 किलो ओम्स प्लस और माइनस 5%, या कहाँ पे तुम्हें एक एडिशन में वैल्यू दिया होगा और एक सब्ट्रैक्शन में वैल्यू दिया होगा। यानी my answer can be between 49,500 या 45,000, whatever it is, 45,000 whatever it is, and 49,000 45,000 will be the approximate range of that particular resistance. सर क्या मुझे ये वो टॉलरेंस समझा नहीं इतना। टॉलरेंस का मतलब ये हाउ मच इज, क्योंकि ये एग्जैक्ट रेजिस्टेंस थोड़ी देगा। हेलो, ये एग्जैक्ट रेजिस्टेंस थोड़ी देगा। छोटा सा ऑब्जेक्ट केमिकल्स अंदर डाले हुए हैं, कार्बन रेजिस्टेंस के साथ में दूसरा मटेरियल है, उनका प्रोपोर्शन डालते हुए एक रेजिस्टेंस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वो रेजिस्टेंस जो डिटरमाइन करते हैं वो तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी मिलेगी, उसके अंदर वेरिएशन तो आएगा। तो कितना का वेरिएशन है भाई? 5% का ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ पे 10% का, यहाँ पे 20% का। Are you getting it? That is a variation in the ओके measurement of resistance. तो ये हुआ तुम्हारा concept of carbon resistance. Is this clear, students? यस सर क्लियर है। Erase करो, मैं इसको erase कर दो students. 1 मिनट। Okay.
तो मतलब वो रेंज बताएगा कि मतलब अप्रोक्सीमेट रेंज कितना हो सकता है, क्या बोल रहे हो? अप्रोक्सीमेट रेंज कितना हो सकता है रेजिस्टेंस का 40? अप्रोक्सीमेट रेंज हाँ वेरिएशन ऑफ 5 to 10 के बीच में, और वो इतना इतना ज्यादा फर्क नहीं दिखाता है। ये जो वेरिएशन भी है वो इट्स नॉट अ टू लार्ज वेरिएशंस व्हिच सर डन। ओके। Okay, students. Now, students, you have your simple resistance systems, okay? Simple resistances connected with them, okay? So, अगर suppose मैंने कुछ resistances दिया students, okay? As a 3 resistance, which all of you all know students. अगर मैंने 3 resistance दिया and तीनों connect किया मैंने series में students, R1, R2 and R3. तो यहाँ पे क्या होगा? We can see that the current remains constant students. ये ध्यान में रखना, okay? Potential difference across this will be V1, V2, V3. अगर मैंने ये पॉइंट ए ले लिया है, पॉइंट बी ले लिया है, तो व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी? तो वो कैपिटल बी हो जाएगा। एग्री स्टूडेंट्स? So now when I go for what exactly your total resistance in series will be equal to R1 plus R2 plus ये है तुम्हारा resistance in series के बारे में। So resistance is in series, resistance पहले वाला series के लिए। इन सीरीज क्या होगा? तुम्हारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ता है। अगर तुमने सपोज इफ आई गो ऑन एडिंग फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज फ्रेंड्स, तो अगर तुम्हारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा। ये ध्यान में रखना। तभी जाके इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट्स हम कभी सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं यूज करते। सर पैरेलल यूज कर। हाँ,
दे आर एट सेम वोल्टेज। पैरेलल के अंदर अगर तुम देखोगे तो स्टूडेंट्स देयर आर रेजिस्टेंसेस दे आर कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स, यानी जहां पे तुम्हारा करंट जंक्शन आता है, तो जहां पे तुम्हारा जंक्शन आता है तो करंट वहां पे स्प्लिट होता है। जंक्शन का मतलब मोर देन वन पाथ। अगर सपोज मैंने ये R1 लिया है, ये R2 लिया है, ये R3 लिया है, और यहाँ से अगर मैंने करंट को भेजा स्टूडेंट, करंट स्टार्ट स्प्लिटिंग अप, क्योंकि ये तीन रास्ते हो गए, टोटल करंट I है, लेकिन यहाँ पे जा रहा I1, यहाँ पे जा रहा I2 और यहाँ पे जा रहा I3, वापस रीयूनाइट होके कैपिटल I है ना। तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स कहाँ पे करंट ज्यादा होगा, कहाँ पे करंट होगा, तो तुम क्या बोलोगे सर इट डिपेंड्स ऑन टू रेजिस्टेंस। जहाँ पे जहाँ रेजिस्टेंस पे ज्यादा कम होगा रेजिस्टेंस वहाँ पे करंट। लेकिन टोटल करंट I हो जाएगा, यानी यहाँ पे टोटल करंट क्या होगा सर, यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3, वैसे यहाँ पे टोटल वोल्टेज क्या होगा, टोटल वोल्टेज विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। जब भी तुम इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल निकालोगे तो क्या आता है, 1 अपॉन रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर वैसे मैंने n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लिए तो 1 अपॉन Rn। तो जैसे जैसे तुम पैरेलल में कनेक्ट करते जाओगे स्टूडेंट्स, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस पैरेलल का कम होगा। सॉरी, ये डायरेक्ट वेरिएशन स्टूडेंट्स। अगर रेजिस्टेंस सॉरी इनवर्स वेरिएशन, वेरी सॉरी, रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे बढ़ेगा तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ेगा। यहाँ पे क्या है, if the resistance in parallel decreases what happens to the current increase। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये है स्टूडेंट्स, तब जाके हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं, क्योंकि ओवरऑल रेजिस्टेंस अभी डिक्रीज होगा, करंट बढ़ता रहेगा। दैट्स व्हाई वी गो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इन हाउस। ये तुम्हारा सिंपल सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन है। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. हाँ सर जी। Okay. Now if in case if I happen to go for cells, अभी ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, okay, combination of cells and resistance, okay। तुम्हें स्टूडेंट्स मैं डायग्राम्स में ड्रॉ करके दे रहा हूँ तुम्हें, इन सारे डायग्राम्स में स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, मुझे EMF नेट, internal resistance net, and I want the formula for current flowing through circuit अगर मैंने कोई external resistance कनेक्ट करके दिया तो, नहीं तो सिर्फ E नेट और R नेट फाइंड आउट करना। Okay, now for example if I give you my first diagram, please pay attention for this। पहले इजी से शुरू करते हुए मैं जा रहा हूँ, ये मैं पूरा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद में तुम अपना आंसर निकालते रहना। ये EMF को हम E लेते हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, E नेट का फॉर्मूला, तो मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे टोटल करंट का फॉर्मूला क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन, E नेट क्या होगा, R नेट क्या होगा, एंड आई वांट टू फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। थर्ड केस, E नेट क्या होगा यहाँ पे, R नेट क्या होगा, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू कंप्लीट सर्किट। I want the formula for E net, R net, current flowing through complete circuit। फिफ्थ वाला,
E net, R net and carotid. कोई जगह नहीं बची है स्टूडेंट्स। क्या ये क्लियर हुआ सारे डायग्राम स्टूडेंट्स? क्लियर तो है सर। ई नेट आर नेट आएगा चाहिए, ई नेट आर नेट आएगा चाहिए, ई नेट आर नेट आएगा चाहिए, ई नेट आर नेट आएगा चाहिए। लेकिन ये ध्यान में रखना ये पॉजिटिव नेगेटिव है। ये है पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव, नीचे नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया। सारों में मैंने बल्ब लगा दिया है। मुझे सबका फॉर्मूला ई और आर का आंसर। कैन यू गेट द आंसर राइट नाउ? One who finishes all the 5, you can raise your hand. क्या मैं इसको इरेज कर दूं? ये पार्ट इरेज कर दूं? हाँ सर चलेगा। सिक्स और 7 डायग्राम क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? In 6 and 7 diagram is also clear. Yes, sir. Okay, इसका भी आंसर निकालना है।
Anybody students? सर अभी क्वेश्चन लिख के हो गया है just, मतलब Yes, Harsh, can you answer? Ankit, Bhargav, Deep, Norman, Parth, Ria. Ria, you're keeping your fingers crossed all the time. At least open your fingers and answer, Ria. Don't have blind faith onto anybody. Answer, Ria. Shaili, Shanika, Shreya, Siddharth, Kaha, Tariq, Kirit. And one guy went off. यहाँ पे सेल्स कनेक्टेड सीरीज है लेकिन मैंने इनफाइनाइट दे दिया, यहाँ पे पैरेलल में दिया और इंफिनिटी में दे दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है टू अंडरस्टैंड इट। यहाँ तक इजी है, यहाँ तक इजी है, शायद यहाँ तक इजी हो जाएगा। देन लेटर ऑन वी नीड टू थिंक अबाउट दीस टू एंड दीस टू। दैट्स ऑल। Hey students, anybody? इसका आंसर तो इजी है ना, ये ई नेट तो ई E आएगा, upon R plus R। ये तो आई इज इक्वल ई अपॉन कैपिटल प्लस स्मॉल आर ही होगा, इसमें कुछ फर्क नहीं है। हाँ अभी यहाँ दोनों ईएमएफ सेम है, दोनों इंटरनल, तो ई नेट क्या होगा, ट्वाइस ही ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी अगर ये 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है तो ऐड हो जाएगा। एग्रीड। अगर सपोज मैंने ये E1 प्लस E2 भी लिखा तो 2 प्लस 3 5 वोल्ट ऐड हो जाएगा, इनके करस्पॉन्डिंगली इंटररेजिस्टेंस 2R हो जाएगा। करंट का फॉर्मूला क्या होगा, I is equal to E upon capital R plus 2R। अगर सपोज मैंने इसको E1 और E2 लिखा होता, R1 और R2 लिखा था, तो व्हाट इज माय E net, E1 प्लस E2 होता। व्हाट इज R net, R1 प्लस R2 होता, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है।
क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ सर। इसके लिए क्या होगा, तुम्हारा पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये पैरेलल में है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे तुम्हारा ईएमएफ सेम ही रहेगा स्टूडेंट्स, ई नेट इज ई ओनली, यहाँ पे 1/e नहीं आएगा, रेसिप्रोकल नहीं आता है, क्योंकि देखो ना ये बल्ब का ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड टू द सेम पोटेंशियल्स। तो अगर सपोज मैं ये पॉइंट x लेता हूँ, पॉइंट y लेता हूँ, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट x एंड y? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही होगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स x एंड y? इज e ओनली। अगर ये 2 वोल्ट से ये 2 वोल्ट से, तो नेट e होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा सर? वो पैरेलल में आ जाएगा, यानी 1/r, द इफेक्टिव विल बी इक्वल टू 1/r प्लस 1/r 2/r, and what is R effective? R/2. 1/2. So now can I go for the formula for I? I is equal to E upon capital R plus R/2. क्या ये clear हुआ? Yes, Is this sir. clear? 4th, 5th, 6th, 7th, do it for homework. Okay? Try to get it. Okay? Next class में हम लोग discuss करेंगे इसका. Is that clear, students? Yes. Yes. Okay. And wind up the sessions. Next lecture will be continuing from there. Next lecture will be solving problems now. जहाँ तक हम लोग ने complete किए उसके related will be solving problems. Okay. Sir, 1 minute. And I'll go for capacitors also simultaneously. Capacitor we have done ना? हाँ, इसमें उसके problems हम करेंगे. कुछ और problems करेंगे. अच्छा. Can I erase? हो गया? Yes sir. Okay. चलो bye. Thank you sir. Bye. Bye.